Hello students, today we will study about Unix operating system. So ये जो Unix operating system, that is also an operating system. In the previous class we see Windows operating system, उसका हम लोग different version देखे और हर एक version में क्या क्या रहता है वो सारा चीज भी देखे, कैसे वो graphical user interface है and how it उसका जो एडिशनल जो वर्जन सब आया उसमें क्या क्या चेंजेस आया वो सारा चीज हम लोग देखे. ओके, सो दिस यूनिक्स इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम. इसी के साथ आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, दैट इज ऑल्सो अ फैमिली ऑफ दिस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, सो वी विल सी इट लेटर कि आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या डिफरेंसेस है. ओके, so this is an operating system which is developed by the Bell Laboratory that is originally in your AT&T Unix बोल के बोला जाता था. Okay, and this is a link between the computer hardware and the user. So इसका शुरुआत हुआ 1969 में and तो वो डेवलप हुआ 1971 में and मार्केट में उसका लॉन्च हुआ 1973 में, वो पॉपुलर हो गया था. ओके, नाउ दिस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग बोले कि दिस बेल लैबोरेटरी में हुआ, तो उसको कौन शुरुआत किया? सो केन थॉमसन एंड डेनिस रिची एंड अदर्स मिलके वो लोग ये दिस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम निकाले. सो दिस यूनिक्स इज जो निकाला गया ऑपरेटिंग सिस्टम वो रीरिटर्न हुआ इन सी लैंग्वेज. ओके, बाय दिस डेनिस रिची. ओके, वो रीरिटर्न हुआ सी लैंग्वेज. सो यूनिक्स आपका किस लैंग्वेज में लिखा गया है बोलने से? सी लैंग्वेज. ओके, so leading to a variety of both academic and commercial Unix variants from vendors including your University of California, Berkeley, that is BSD, whose full form is your Berkeley Software Distribution. इसका different version है. Okay, so Unix variants उसी को, तो Microsoft का Genix, सन माइक्रो सिस्टम्स का आपका सन ओएस और सोलारिस इनिशियली, एंड देन हम लोग अभी बोल रहे हैं उसको ओरेकल सोलारिस बोलते हैं. HP, HPE, HPUX and IBM AIX Advanced Interactive Executive. Okay, so these are the variants of your Unix. And the latest version of the certification standard of Unix is your Unix V7, which is aligned with the single Unix specification version for 2018 edition. Okay, so this Linux is also a flavor of your Unix, जो हम लोग बोले कि this is a family of your Unix operating system. Now come to, here are several prominent features of your Unix and few among them are stated below. So this is a multi-user operating system, so multiple users can access this. Multitasking at a time, it can do many types of tasks. Then it is rewritten in a high level language, that's that actually in the C language. And इसमें क्या है, hierarchical file structures रहता है, so that it's very easier कि हम लोग का फाइल कौन सा डायरेक्टरी में है, वो कहाँ पे रखा गया है, उसके बाद हम लोग को कौन सा पाथ फॉलो करना है. सो इट मेंटेन्स इन हायरार्चिकल फाइल स्ट्रक्चर्स. देन आपका यूनिक्स हैज बिल्ट इन नेटवर्किंग फंक्शंस रहता है. यूनिक्स फंक्शनलिटी कैन बी एक्सटेंडेड थ्रू यूजर प्रोग्राम्स बिल्ट ऑन स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग इंटरफेस. ऑब्वियसली कम्युनिकेटिव है, मतलब हम लोग हार्डवेयर यूजर कैन इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर. And security wise also login ID and password देना पड़ता है to log in into Unix, so that feature is there. And also आपका फाइल को अगर encrypt करना है तो there are various encryption techniques भी there है. And portability means we can use this Unix in different system also. And Unix shell आपका SUI provide सर्विस दैट द यूजर वांट. ओके, सो यहाँ पे जो SUI जो लिखी हूँ दैट इज सिंपल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एंड उसको सेल प्रोग्रामिंग बोल के कहा जाता है. ओके, दैट प्रोवाइड सम सर्विसेज. ओके,
नाउ कम टू यूनिक्स आर्किटेक्चर. सो इन आर्किटेक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पे हार्डवेयर है and this is the kernel. Kernel is a heart of your operating system, or we can say that this is the core of the operating system that directly interacts with the underlying hardware to provide a set of standard services. Okay, so यहाँ पे kernel है, then यहाँ पे आपका cell, therefore the different commands है. Okay, जो हम लोग जो cell बोल रहे हैं यहाँ पे. So this cell is a program that reads the user commands. That's nearly about 250 or more अभी हो सकता है, that evaluates it and then prints the results. Okay, so there are various cell programming, that is C cell, Bourne cell, Corn cell, etc. So these commands are often entered on a command line interface that provides by a cell. Okay, so for evaluating these commands, the cell may execute some other commands also or pass them to the कर्नल, जो कि हम लोग दैट इज द कोर ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, सो हाउ टू एक्सेस यूनिक्स, हम लोग यूनिक्स को कैसे एक्सेस करेंगे. सो एक्सेस करने के लिए वी नीड द लॉगिन आईडी प्लस योर पासवर्ड. ओके, अगर पासवर्ड रॉन्ग हुआ तो यू कैन वो एरर मैसेज दिखाएगा, अगर सही हो गया तो वो आपको यूनिक्स प्रॉम्प्ट में ले जाएगा. सो यूनिक्स प्रॉम्प्ट में अगर जाओगे तो आपको ये वाला डॉलर सिंबल दिखाएगा, मीन्स नाउ यू आर इन द यूनिक्स प्रॉम्प्ट एंड हियर यू हैव टू टाइप योर कमांड. ओके, नाउ कम टू व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन यूनिक्स एंड लाइनक्स. सो दिस लाइनक्स इज ऑल्सो एन एसेंशियल, और हम लोग बोल सकते हैं अ क्लोन ऑफ यूनिक्स. जैसे अगर मैं आपका एक क्लोन बनाऊं, मीन्स इट्स नॉट सेम, इट लुक्स लाइक सेम बट इट्स नॉट सेम. ओके, सो हम लोग एक कॉपी बनाएंगे उसका. उसी तरह का है कि लाइनक्स इज एसेंशियली अ क्लोन ऑफ यूनिक्स बट द बेसिक डिफरेंस आर हियर. ओके, सो आपका जो लाइनक्स है दैट इज फ्रीली अवेलेबल टू एवरीवन, मीन्स दैट इज ओपन सोर्स है. वो फ्रीली अवेलेबल है, उसमें कोई पे करना नहीं पड़ता है. दैट वाज डेवलप्ड बाय योर लाइनस टॉरवाल्ड्स इन 1991. सो द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ लाइनक्स हियर इज योर उबुंटू. ओके, सो दिस इज ऑल्सो मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, मल्टी यूजर कॉन्सेप्ट है. एनी यूजर कैन एक्सेस दिस बिकॉज दिस इज फ्रीली अवेलेबल टू एवरीवन. बट हम लोग अगर यूनिक्स का बात बोलें, सो दिस सोर्स कोड ऑफ यूनिक्स इज नॉट फ्रीली अवेलेबल, मतलब टू जनरल पब्लिक, सो यू हैव टू पे फॉर इट. सो उसका स्टार्टिंग हुआ 1969 में, developed complete one 1970 and launched into the market, that is year 1973. In some sites you can find 74 लिखा हुआ रहेगा, 72 लिखा हुआ रहेगा कि डेनिस रिची जो डेवलपमेंट स्टार्ट किए एंड दिस यूनिक्स को वो री रिटर्न इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हुआ. कहीं जगह पे आप देखोगे कि 1972 टू 1974 लिखा हुआ रहेगा. ओके, सो दिस इज ऑल्सो मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, मल्टी यूज़र कॉन्सेप्ट यहाँ पे है. एंड ये जो सबके द्वारा यूज हो सकता है, बट दिस वन इज नॉट यूज बाय एवरी वन बिकॉज दिस इज द पेड वन एंड ओनली बिग ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली यूज इट. ओके, सो दिस लाइनक्स इज a graphical user interface along with the command line interface, that is your GUI और आपका command line interface. Okay, so here आप अगर देखा जाए, this one is here, but अगर इनिशियली हम लोग यूनिक्स का बात बोलें तो वो सिर्फ एक कमांड लाइन इंटरफेस था, बट देर आर वेरियस फीचर्स एडेड लेटर ऑन. सो हम लोग इसको भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोल सकते हैं या फिर कमांड लाइन इंटरफेस बोल सकते हैं. ओके, देन लाइनक्स OS is portable, flexible and can execute it in different hard drives. Unix is also nowadays it's portable. Different version of your Linux are your Ubuntu, Linux, Mint, Red Hat, Solaris, etc. That is your Solaris जो बोले Oracle Solaris बोल रहे हैं.
Different version of Unix are your AIS, HP, UX, BST, IRIS, etc. Okay. So the file system supported by Linux are your XFS. ये सारा अगर रहेगा तो दिस इज आपको पता चलना चाहिए, दिस इज योर लाइनेक्स पूरा. And the file systems that supported by Unix are as follows, that is your JFS, JS, HFS, this one. Okay, so these are the difference between your Unix and Linux. Okay, there are various commands which are used in your Unix as well as in your Linux. Okay, we will see it later on.